of the facts. ये देखो, Jews Holocaust 6 million died. Hindu Holocaust 90 million tortured and butchered. ये एक पेपर देखिए। है, ये तब का पेपर है कलकत्ता ऑफिस का, बहुत पुराना। अरे और इसमें यार। लिखा है, ये देखो, लुक एट द पीपल, 90 million। And look at the vultures there, ma'am, on the wall. हाँ, अच्छा, जूस का होलोकॉस्ट में 6 million ही मरे, पर हाँ, हिंदू होलोकॉस्ट में 90 million 90 टॉर्चर्ड। मिलियन देखिए। अब जूस का तो पूरा मतलब पूरा वर्ल्ड जानता है, अब हिंदुओं का क्या है देखिए, 6 कहाँ पे, 90 कहाँ पे। हाँ। इसके बारे में बात ही नहीं करना है हमको, बात करेंगे तो ये मुल्ले यू कैन मतलब रीड, यू कैन रीड दीज बिट्स शामा। ऑफ इंफॉर्मेशन। K.S. Lal, Hindu population in India decreased by 80 million between 1000 AD and 1525 AD, an extermination unparalleled in world history. मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका तुलना करने का कोई ये ही नहीं है। हाँ, 80 मिलियन हिंदूस। फ्रैंकोय गॉटियर बोलता है हिंदू फ्रांसुआ होलोकॉस्ट। गॉटियर, हाँ, फ्रांसुआ फ्रांसवा। गॉटियर ने कहा है कि आई नो दिस पर्सन, फ्रांसुआ गॉटियर, ये आता है बहुत। हिंदू होलोकॉस्ट बाय मुगल्स इज बिगर। than the Holocaust of Jews by Nazis, Armenians by the Turks, Native Americans by Spanish and Portuguese. हाँ, और ये जो मिस्टर एक्स आए थे उस दिन, वो बोल रहे थे कि वेस्ट ये कर रहा है, वेस्ट वो कर रहा है। देख लो भाई, 90 मिलियन, इसका कोई तुलना ही नहीं है। 90 million, I'll repeat that again. It was much bigger than the Jews of by Nazis, Armenians by the Turks and Native Americans by Spanish। and मेरे ख्याल से ये तीनों ऐड भी कर लोगे तो इतना नहीं आएगा। हाँ, वसाफ फ्रॉम पर्शिया बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी captured Kambayat, beheaded all Hindu men, took all Hindu women as his concubines. His spiritual advisor Qazi said about Hindus, if silver is demanded from them, they must offer gold. If a Mohammedan desires to spit into a Hindu's mouth, the Hindu should open it wide for the purpose. एंड दिस इज ट्रू। एक्चुअली एक जो अखबारात मुझे मुझे उसके मिले थे, औरंगजेब वाले जो, उसमें लिखा हुआ है कि ये मैम लोग ये घोड़े देखिए पे आते मैम, थे, एंड दे ये आस्क्ड देखिए फॉर मैम, हिंदू मेन टू ओपन देयर माउथ एंड दे वुड स्पिट इन इट, उसमें थूकते थे और फिर जिजिया लेते थे। ये देखिए, एक मोमिन क्या बोल रहा है, ग्रेट रूलर ऑफ इंडिया। हाँ, अरे मारो आमिर भाई। हग भाई का स्टूडेंट, आमिर हग का, ओके ठीक है, मेक सेंस। नेक्स्ट पढ़ो। Muhammad Ghazni Somnath invaded 17 times, slaughtered all 50,000 inhabitants in annual raid. Qutbuddin Aibak killed and enslaved 1 lakh people, demolished all the Hindu temples and erected mosques on their sites, forcibly converted Hindus to Islam and beheaded those who did not. Nadir Shah Delhi made mountain of Hindu skulls. ये तो हर एक मुगल करता था, ये उनकी स्पेशलिटी थी। मैंने टॉर्चर तो पढ़ा ही नहीं है। दे यूज टू मेक माउंटेन ऑफ हिंदू स्कल्स, ये हर एक ने किया है। Babur Khanau and Chanderi raised towers of Hindu skulls twice. Akbar, Chittorgarh massacred 30,000 Rajputs. Bahmani sultans killed 1 lakh Hindus every year. Taimur, Delhi, in 1 hour, the heads of 10,000 infidels were cut off. और ये लोग जो करीना कपूर इसका बेटे के नाम तैमूर रखते हैं, जाके इनको तो इसका पिक्चर देखते हैं ये लोग। इनको तो फांसी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। या देश निकाला। द सिटीजनशिप निकाल देना चाहिए मैम। हम्म। Shahjahan, when Shuja was appointed as governor of Kabul, he carried on a ruthless war in the Hindu territory beyond Indus. The sword of Islam yielded a rich crop of converts. Most of the women, to save their honor, burnt themselves to death. Those captured were distributed among Muslim noblemen.
Ahmad Shah Abdali, Hindus were beheaded to get rupees 5 per head. So they made the captive women carry the beheaded heads and captive men carry the headless bodies. At night, as the captive women were being raped, their shrieks were deafening. The chopped heads were arranged like pillars. Men were made to grind corns on the dead bodies. Later, these men were beheaded too. Ahmad Shah Abdali. और लोग पूछते हैं कि क्यों कहते हो कि इस्लाम गलत है? हम्म मुगल ग्रेट हैं। लानत है इन लोगों पे मैम। लानत भी खुद अगर पर्सोनिफाई हो जाए तो उसको भी अपने पर शर्म आए. हाँ. The heart of Banda Singh's son was put in his mouth in an attempt to humiliate him. Later, he was killed. ये जो बंदा सिंह बहादुर था ना, ये सिख, इसके Hmm. बेटे का हार्ट निकाल के इसको ही खिला दिया, इसके Hmm. मुंह में. मतलब इसके अपने बेटे का हार्ट निकाल के इसके फादर के मुंह में डाल के इसको ह्यूमिलेट किया. और इन मोमिनों को इस पे गर्व है। मतलब कैसे इंसान है मैम? ये इंसान ही नहीं है। दीज हाँ, आर द ये कैप्टिव यही विमेन. मैम मैंने बोला था ना आपको, इन्होंने कन्वर्ट करने से मैंने ना, इनकार कर दिया, तो हाँ इनके बच्चों का सर, हाथ, हाँ, पैर सब काट के आई हैड सम उस इमेजेस. वो इतनी गंदी है, उसमें बच्चे को बीच में से वो काट रहा है, लाइक इन हाफ, लाइक हम्म, स्प्लिटिंग है. और इतनी खूनी पिक्चर है, आई कैन नॉट पुट इट अप बिकॉज मैं अपने चैनल पे नहीं लगाना चाहती. आई हैव टेकन द लेस सीरियस वंस. मतलब माओ के 300. सामने ही बच्चों यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है बच्चे को, राइट हैंड में तलवार है। उस बच्चे का उसके माँ के ये सामने देखो, ये ही बच्चा है टुकड़े बना के। जो कि हाँ, एक तल इसमें लटका हुआ है भाले पर, हाँ, बच्चा बीच में से. यू सी दैट? और ये यस, देखो बच्चे कटे पड़े हैं बीच में से, स्प्लिट इनटू हाफ. हाँ। और उस कटे हुए पीसेस का माला बना के उसके खुद के माँ के गले में डाल दिया। इस इन लोगों को अच्छा बोलते हैं, पूछते हैं इस्लाम में कुछ ये कैन कुछ somebody भी गलत आंसर? नहीं है। When did atrocities on Hindu women start? कोई इसका जवाब दे सकता है? ये आ जाते हैं मुंह उठा के इस्लाम को डिफेंड करने, तो हम्म इंसानियत है ही नहीं उसमें। बोलते हैं बहुत अच्छा रिलीजन है मैम, क्या बोल सकते हैं अभी। मेरा बस इतना होप है मैम कि ये कभी भी रिपीट ना हो ये हिस्ट्री। वी हैव टू डिफेंड आवरसेल्व्स। हाँ, इसीलिए मैं डेली बोलती हूँ कि सेल्फ डिफेंस के टूल्स रखिए. सुन ले जाएंगे और फिर भी नहीं करेंगे. मैं ना एक ये बताओ कि सो ये मिस्टर खय्यम बोल रहे हैं, जीनी यू हैव जीरो नॉलेज। थैंक यू सो मच खय्यम जी। हम्म एनीवे, मूविंग ऑन। अच्छा, वो कौन बताएगा कि व्हेन डिड द फर्स्ट अट्रॉसिटी हैपन? पता नहीं मैम। जब सेकेंड हाफ ऑफ 12th सेंचुरी में, जब मोहम्मद गौरी ने अफगानिस्तान जो है, जो जो बड़ा प्रभावित था ना मोइनुद्दीन चिश्ती से, उसने जब इंडिया पर अटैक किया, उसको इस्लामिक नेशन बनाया. मोहम्मद गौरी ने जब इंडिया पर अटैक किया कई बार, तब से स्टार्ट हुआ है ये हम्म, पहली बार हिंदू विमेन पे अट्रोसिटीज. हम्म। तो जो चांदेर बरदाई, वैसे तो मुगल आए थे तभी से हुआ है, पर मैं अभी रिसेंट वाला बता रही हूँ कि जो राजपूत हिस्ट्री में जो रिकॉर्डेड है. मैम, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये खय्यम जी पता नहीं ट्रोल कर रहे हैं। प्रीति, यू आर जस्ट अ डार्क हार्टेड हेटफुल वुमन। आई विल प्रे फॉर बोथ ऑफ यू टू महादेव टू गिव यू नॉलेज एंड पीस। मैं इनको ब्लॉक करूं कि नहीं, आप बोलिए। अरे जाने दो, हम कोई इसकी तरह थोड़ी है, इसने हमें ब्लॉक ठीक कर है, दिया छोड़िए। क्योंकि ये डर गया था, लेकिन हमें किसी को ब्लॉक नहीं करना.
और हमें तो लोगों को सत्य की तरफ लाना है प्रमाण के साथ, हम रेफरेंस दिखाकर सबको सच्चाई की तरफ लाना चाहते हैं। और महादेव जो है वो सच बोलने वाले लोगों को लाइक करते हैं। कृपया झूठ बोलने वाले लोग अपना नाम महादेव के नाम पे ना रखें। और तो ये बता रही हूँ मैं कि अट्रॉसिटीज यहाँ पर हुई कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है ना उसको माफ कर दिया मोहम्मद गौरी को। और ये चीज एक बड़ी खराब बात है कि जो गंदे लोग हैं उनको उसी वक्त उनका तमाम कर देना चाहिए, नहीं तो ये लोग बार बार अटैक करते हैं। और वही काम उसने मोहम्मद गौरी ने किया। अच्छा, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था ये कि क्या गया, मैं एक दो बातें, अभी मेरी स्ट्रीम भी खत्म नहीं हुई है, कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइल्ड मैरिज का क्या मतलब है। जो 2 बच्चों की मैरिज है ये क्यों होती थी इंडिया में? ये चाइल्ड मैरिज का कोई बता सकता है कि ये इंडिया में क्यों होती थी? इन हैवानों से बचने के लिए ना। हाँ बिल्कुल। क्या होता था कि ये जब बच्चों को ये लोग देखते थे कि कौन से छोटे बच्चे हैं, ये हमारे हिंदू कल्चर में कभी भी नहीं था। अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखें तो सीता राम की शादी भी जब हुई, जब वो 16 साल की सीता थी और 23 साल के रामचंद्र जी थे। रुक्मणी कृष्ण की भी शादी तब हुई जब वो टीनेजर थे। और ये जो जितने भी राजा हुए, जो हैं पृथ्वीराज चौहान से पहले जितने भी राजा हुए हैं वो सब ने जो है टीनेजर में शादी की है। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हार गया मुस्लिम से, तब चाइल्ड मैरिज शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर 53 साल के बुड्ढे ने एक 6 साल की बच्ची से, आयशा से जो है शोषण किया। तब इस्लाम जब ये लेकर आया ना, तब जो है हमारे हिंदू लोग जो है ना देखने लगे कि ये लोग हिंदू लड़कियों को किडनैप करने लगे फोर्सफुली। और हमारे बच्चियां जो है 14 साल की भी नहीं हो पाती थी, उनको किडनैप कर लेते थे। तो हमारे इंडिया में ये चीज स्टार्ट हो गई कि बच्चों की ही शादी कर दी जाए। तो चाइल्ड मैरिज भी इसलिए स्टार्ट हुई। इंडिया में चाइल्ड मैरिज थी भी नहीं, ये हमारे हिंदू कल्चर में था ही नहीं। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती सती प्रथा क्यों शुरू हुई, या जौहर जौहर जो राजपूत करते थे, और सती। तो ये बता दूं कि मेरी एक वो भी बनी हुई है इस पर कि सती प्रथा हमारे वेदों में एक मंत्र है, उसमें लिखा हुआ है कि सती प्रथा के लिए कि जिस वुमेन का हस्बैंड मर जाए तो उसके लिए लिखा है कि तू उठ खड़ी हो और अपने बच्चों का पालन पोषण कर। तो सती प्रथा हमारे यहाँ थी ही नहीं। और अब अगर मैं कुछ डिटेल बताऊं तो सती प्रथा जो था वो केवल मादरी उसने अपनी स्वेच्छा से, पहली बात तो सती कौन है, सती नाम क्यों रखा गया? वो सती नाम इसलिए रखा है कि ब्रह्मा का जो बेटा था दक्ष प्रजापति, तो सती जो थी वो इनकारनेशन है दुर्गा का, वो शिव की पत्नी का नाम सती था। क्योंकि दक्ष ने जो है वो शिव को नहीं बुलाया, जब एक यज्ञ किया तो शिव को इनवाइट नहीं किया। तो सती जो थी वो अपने पिता से इतनी नाराज हुई कि उसने जो है योग आसन में बैठ गई और उसने अपने नाभि में से अग्नि प्रज्वलित करी और उसमें वो विलीन हो गई अग्नि में। तब से ये सती नाम वर्ड आया है वहां से। लेकिन खाली सती का हमें कोई रेफरेंस जो मिलता है वो है महाभारत में, जब माद्री जो थी पांडु की बीवी, उसने स्वेच्छा से जो है अपने प्राण त्यागे थे 5000 साल पहले। और इसके अलावा जो है वो कोई भी सती नहीं हुआ। ये देखिए कि दशरथ राजा जब मर गए तो उनकी 3 बीवियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई, उनमें से कोई भी सती नहीं हुई। कुंती विडो थी पर वो कभी सती नहीं हुई। अभिमन्यु की वाइफ भी विडो थी, वो भी कभी सती नहीं हुई। हमारे यहाँ सती प्रथा थी ही नहीं। ये आई है जब से पृथ्वीराज चौहान की डिफीट हुई और ये जो इस्लामिस्ट का पहली बार कदम यहाँ पे हमारी भारत भूमि पे, तो हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हो गई, हमारे यहाँ सती प्रथा स्टार्ट हो गई, हमारे यहाँ जौहर स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब हाँ, अभी मैं थोड़े और से ये तो मैम डेड बॉडीज को भी नहीं बख्शते थे, इसीलिए उन्होंने बर्न कर दिया अपने आप को। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारी जो शरीर है उसको भी ये लोग करें।
अच्छा, हम्म अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, अगला क्या है, वो है नाइट मैरिज क्यों शुरू हुई। तो हम्म नाइट मैरिज का भी ये है कि हमारे यहाँ जो है ना दिन में शादी होती थी। हम्म हमारे यहाँ जो है हिंदू उसमें दिन में हमेशा शादी होती थी। सनातन धर्म में हम्म जो मैरिज है वो एक यज्ञ है, और हम्म हवन कुंड जो है वो एक सैक्रिफाइस प्लेस है, और फायर जो है वो जलाते हैं। तो हम्म यहाँ पर विवाह हमेशा सनराइज से 12 बजे के बीच में होता था, और हम्म, कभी भी सन सेटिंग पर नहीं होता था। तो फिर हाँ नाइट टाइम में क्यों होनी पड़ी, वही बात, पृथ्वीराज चौहान की हार की वजह से जब मुस्लिम रूल आने लगा, तो हिंदूस जो है उनको बहुत सारा जिजिया टैक्स देना पड़ता था। तो जब भी हिंदू की शादी होती थी, हम्म तो मुस्लिम कमांडर जो है ना, जो वहां का टेरिटरी का था, उसको इन्फॉर्म करना पड़ता था। तो हम्म गर्ल जो भी जिसकी शादी होनी है, तो उसको पहले कुछ रातें मुस्लिम कमांडर के साथ रात में बितानी होती थी, फिर वो अपनी हम्म, शादी करती थी। और अगर वो ऐसा ना करे तो उसकी पूरी मेंबर्स जितने भी फैमिली के हैं उनको किल कर देंगे, और उनकी वाइफ्स को ले जाकर स्लेव बनाकर मार्केट में बेचेंगे। हम्म तो इन सब एट्रोसिटीज से बचने के लिए हिंदूज ने ये सेरेमनी रात में करनी शुरू कर दी है, चुपचाप, हम्म इनकॉग्निट। तो हम्म, ये नाइट मैरिज तब से स्टार्ट हुई है, ये पहले थी ही जी नहीं। जी अच्छा, लास्ट में तो बस वही था होलोकॉस्ट का, तो ये वाला पावर पॉइंट तो मेरा खत्म हो गया।